Good morning, ma'am. Good morning, Sachin. Okay. How are you all? Good morning, beta. Fine. So how were the holidays? Niharika, Sachin, Akshat, Kavyansh, if you could please open your cameras. I hope I am audible to all of you. Yes, ma'am. So can you please open the cameras? Yes, ma'am. Okay, I hope you all have the books with you. Do you all have the books with you? Class? Yes, ma'am. Can you tell me where we were? Can you see the screen? Yes, ma'am. What can you see? Good morning, ma'am. Good morning, Kartike. मैं आपने नोटबुक में कितने कितने मार्क्स दिए हैं सबको? Depending upon the kind of work is done. मैम आप मेरे बता सकती हैं? नहीं बेटा, आपके नहीं बता पाएंगे, हम किसी के भी नहीं बता पाएंगे. ओके मैम. Anything special? नो मैम. आई एम Then जस्ट आस्किंग. okay. मैम यूटीज विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन? Beta, how many times you people are going to ask the same question? Please tell. How many times? Acha, tell me one thing. मैम लास्ट टाइम. Last class, up till where we have read, I think only 3 were there in the last class. Akshat, you were there, no? And Kavyansh was also there. मैम मी आल्सो. Sachin, right? Yes, ma'am. There I said no, only 3 were there in the class last time, I remember. So up till where we have read? बीवर डिड क्या था ये हमने प्रोडक्ट. था. यस मैम, यस मैम. ये भी हमने, आई थिंक द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज हमने शुरू कर दिया था. उसके यस बाद मैम. हमने ये भी पढ़ लिया था, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर भी शायद हमने पढ़ लिया था. नहीं, ये शुरू करना था बेटा हमको, है ना? यस मैम. चलिए. मैम आपने बताया नहीं मैम. क्या चीज बच्चे? मैम वो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला.
बेटा ये तो सर बताएंगे ना, हम कैसे बता देंगे, हमें कैसे पता? द स्कूल अथॉरिटीज, ओके मैम। सर विल टेल यू ऑनलाइन मैम और अब तो मैम न्यू गाइडलाइंस आई है मैम सीबीएसई की तरफ से। हाँ बेटा, न्यू गाइडलाइंस आई हैं, उसमें ये कहा गया है कि आपका 50% सिलेबस का एग्जाम फर्स्ट टर्म में होगा नवंबर दिसंबर, और 50% का सिलेबस का एग्जाम होगा सेकेंड टर्म में, दैट इज अप्रैल में, मार्च अप्रैल। तो 2 बार आपके एग्जाम्स होंगे, एक में कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, एक आपका थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। तो 2 बार एग्जाम देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रोजेक्ट्स अपने करिए, रिटर्न वर्क करिए, क्योंकि सब चीजों को इस बार कंसिडर किया जाएगा। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। एग्जाम्स होंगे मैम ये। दोनों बार मैम 50% आएगा? हाँ जी, हमारा 50% से ज्यादा ओके सिलेबस मैम। हमने कवर ही कर लिया है। यस मैम। यस मैम। तो मैम अब मैम रिवीजन Yes, करेंगे। ma'am. पहले बस ये चैप्टर्स खत्म कर लें, हमारे थोड़े थोड़े बचे हैं, उसके बाद फिर हम रिवीजन ही रिवीजन करेंगे खूब अच्छे से, कंप्लीटली ओके एमसीक्यू मैम। के 1 मार्क क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि अगर आपका वो होता है और ये लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो आप लोग एटलीस्ट एमसीक्यू वाले पोर्शन में अपने मार्क्स ना खोएं आप। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हम आपको कह रहे हैं, ये इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए। सो वी हैव 8 participants in the class: Akshat, Bhumika, Kartike. Just a second. Srishti Singh, are you there? Is Srishti Singh in the class? But if you are not there, there is no point keeping you in the meeting. Yes, ma'am. Kindly respond, beta. Simply coming to the class and just putting your attendance is not what I need in the class. I need equal participation of each and every child who is there in the class, be it 2 students or 5 students or 10 or 15 or 35, right? Because Yes, when yes, you ma'am. are called out, you don't respond. And when you don't respond, for me, you are absent from the class. You are not in the class, right? Okay. Can we have Srishti reading hand labor and steam power? Srishti, have you read this chapter before? No, ma'am, I didn't attend the classes. Why? Ma'am, actually, I was out of town. Okay. So not even a single class you attended? No, ma'am. Fine. So what about now? Will you be regular? Yes, ma'am, from today I'll be regular. Let us see. Fine. Anybody in the class who would tell that what exactly is this chapter about? Any one of you? मैम इंडस्ट्रियलाइजेशन। Ma- Okay. This chapter about industrialization. Yes. What is this industrialization? Ma'am. Huh? मैम सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। Yes. See, industrialization was a process where machines were introduced for the production purposes, right? Human labor was replaced by the machines. Not all, but yes, to some extent, many of the machines were doing, work of a large number of human, and these machines, during the process of industrialization, they replaced human. The hand work that was earlier taken by the laborers, that was now replaced by the machines, right? Then Yes, in this ma'am. chapter, what else we have read in this chapter, Akshat? Would you like to throw some light upon it? Hmm? Akshat, are you there? Ma'am, I'm there, but your voice is very cutty. My voice is not clear. ऐसा तो नहीं लगता है हमें. Is anybody else facing any problem regarding my sound नो system? मैम। मैम नो No, मैम। ma'am. मैम उसका मैम नेटवर्क एरर No, होगा। ma'am. चलो ठीक है, कोई नहीं. तो कैन वी हैव काव्यांश टेलिंग? काव्यांश?
बेटा? Anybody in the class who would tell? Ma'am, engine was invented. हाँ Ma'am, हाँ train was invented. ठीक है, ट्रेन्स आ गए एग्जिस्टेंस में, वेरी गुड। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन हमारा बढ़ गया, अच्छा हो गया, बेटर हो गया। प्रोडक्शन बेटर हो गया। स्टीम पावर, स्टीम पावर आ गई, ठीक है। और नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स। नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में क्या रहा था, क्या था? ये तो बेटा ये वो टॉपिक है जो हम अभी पढ़ेंगे, इसके बारे में आप हमें ना बताओ, ये हम अभी पढ़ेंगे, इसके लिए ज्यादा वो नहीं है। आप हमें वो चीजें बताओ जो ऑलरेडी चले गए हैं। जैसे इफ वी टॉक अबाउट अगर हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, हमने इनिशियली 2 पिक्चर्स को एक्सप्लेन करा था, उसके बाद हमने एक्सप्लेन करा था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वो टाइम पीरियड था जो कि मशीन्स के आने, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले का समय था, ठीक है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, और क्या पढ़ा था हमने इसमें? हमने और क्या पढ़ा था? Ma'am, new factories was set up. Ma'am, your voice isn't clear. बेटा what else was there, I am asking. बताइए बेटा, और क्या था? Am I not audible? Yes, ma'am. Am I audible or not audible? Ma'am, audible. हाँ बताओ। Ma'am, और, you're audible. हाँ और क्या था इसमें? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में और क्या था? बताइए। बताओ भाई। Good morning, ma'am. हाँ जी, गुड मॉर्निंग Ma'am, अभ्युदय। there was a very large production for international market. ठीक है, किस तरीके And से? ma'am, वेरी गुड, वेरी गुड। and ma'am, merchants are वर, begin moving to countryside, supplying money to peasants. ठीक है। चलो इंग्लिश में आप नहीं बता पा रहे हो, हिंदी में बताओ। बिकॉज देखो जो चीज हम पढ़ रहे हैं बेटा, वो अगर आपको उसका प्रीवियस ही नहीं पता है तो फिर आगे पढ़ के कोई फायदा नहीं है ना? सृष्टि, सृष्टि सिंह, आर यू देयर और यू आर गॉन? गई, सृष्टि सिंह चली गई। चलो अच्छा, कार्तिकेय भट्ट। यस मैम। मैम हो क्या रहा है मैम? वो रिकनेक्ट हो रहा था मैम, तो पता नहीं है मुझे। Ma'am, coming up of the factories. कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। मैम व्हाट? बेटा हम ये पूछ रहे हैं कि जो ये आपके जो मर्चेंट्स थे कंट्री साइड में, इनका इंटरेस्ट क्यों था, ये क्यों चले गए थे? बताओ। मैम उनका मैम प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा था इसलिए। और मैम उनका मैम लॉस हो रहा था मैम, वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था मैम। लॉस की बात नहीं है ना, प्रॉफिट की बात है। उनको क्योंकि ऑलरेडी जो
जो सिटी एरियाज थे, जो टाउन्स थे, वहां पे ऑलरेडी जो है गिल्ड्स एसोसिएशन के जो लोग थे, जिन्होंने अपने अपने गिल्ड्स बना के रखे हुए थे, अपने एसोसिएशन बना के रखे हुए थे, दे ऑलरेडी हैड गुड अमाउंट ऑफ वर्क विद देम। इनका अपना खुद का जो है वो था, व्हाट डू यू कॉल, उनकी अपनी कंट्रोलिंग थी ओवर द रिसोर्सेज, और वो लोग नहीं चाहते थे कि नए लोग मार्केट में आए और उनकी मोनोपोली को खत्म करें, राइट? ओके मैम। हाँ, चलिए। Okay, ma'am. Yes, बेटा ma'am. आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ये चैप्टर, का मतलब दोबारा से प्लीज, रीडिंग इज अ मस्ट। क्लास में जब हो जाती है उसका थोड़ा सा घर में भी पढ़ा करो, टाइम होता है तो कर लिया करो, बिकॉज देर इज नो पॉइंट हम कराते जाएं, आप लोग करते जाएं, और जब हम पूछे तो आप लोग को पता ही नहीं है बेटा, ठीक है? चलिए नो मैम, वो आजकल मैम यूटी पे ज्यादा फोकस है। अरे बेटा कैसी बातें करती हैं। अरे मैम उसमें नंबर कट गए तो मैम क्या होगा मैम, तुम से पढ़ लेंगे अभी आगे। चलो, डू वी हैव इशिका इन द क्लास? इशिका इज नॉट देयर बट शी हैज मार्क्ड हर अटेंडेंस। चलो ठीक है, अब वो कह रहा है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। देखो बेटा, हैंड लेबर हम सब लोग जानते हैं, जो हाथ से काम करा जाता है, दैट कम्स अंडर दी हैंड लेबर। और स्टीम पावर वो थी जो कि मशीन्स के थ्रू काम किया जाता है, ठीक है? अब जब जब हम हैंड लेबर और स्टीम पावर की बात करते हैं, तो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो दो ओपिनियन के थे। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, दे कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दी स्टीम पावर, उन्होंने मशीन्स का बहुत मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा और अपने पास मैन पावर जो थी, लेबर, हैंड लेबर जो थी, उसको कम कर दिया। पर कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका फोकस जो था अभी भी हैंड लेबर पर ही था। उसका रीजन ये था कि जो मशीन्स थे, देवर वेरी कॉस्टली, उनकी रिपेयरिंग काफी कॉस्टली थी, उनकी मेंटेनेंस काफी कॉस्टली थी, ठीक है? अगर वो खराब हो जाए तो उसको सही करवाना वाज नॉट अ इजी टास्क, ठीक है? बहुत मनी रिक्वायर्ड होता था। तो इसलिए बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो जो है दे प्रेफर्ड हैंड लेबर। उन्हें लगता था, अब क्यों क्यों ऐसा था कि वो स्टीम पावर को ना यूज करके हैंड लेबर को यूज कर रहे थे? वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था भैया, जो हैंड लेबर है, जो इंसान है, जो मैनुअल पावर है, वो ज्यादा इजी है टू हैव। क्यों? क्योंकि सस्ते में मिल जाती थी लेबर। भाई लेबर इतनी सारी थी, लोग इतने सारे थे काम करने के लिए, काम था नहीं, तो सस्ते में लोग मिल जाते थे। दूसरा, अपने मन मुताबिक जो भी उनको मन के हिसाब से जो भी उनको काम करवाना होता था, वो करवा लेते थे, ठीक है? और ये लोग भी राजी राजी कर देते थे, कोई मना नहीं करता था, राइट? दिस इज क्लियर यस मैम। Yes, ma'am. टू एवरीवन? Yes, ma'am. चलिए, ठीक है। तो जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उनका ऑफ कोर्स स्टीम पावर काफी फेमस हो रहा था। उसका कारण ये था कि कम समय में भाई जो है आपका ज्यादा काम उनको मिल रहा था, ठीक है? लोगों की जो डिमांड्स थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो रही थी टाइमली। पर फिर भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, वो जो है हैंड लेबर को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे बजाय स्टीम पावर की, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, let us read. Can we have Sachin reading? Yes, ma'am. चलिए, In Victorian Britain, there was no shortage of human labor. Poor peasants and migrants moved to the cities in the large number in search of jobs waiting for work. As you will know, when there are plenty of labor, when there wages is, are low. ना when there is, जब वहां पर, जब कहीं पर Yes, plenty of labor, when there is plenty of labor, wages are low. So industrialists had no problem of labor shortage or high wage cost. And they did not want to introduce machines that got rid of human labor and required a large capital investment. In many industries, the demand for labor was seasonal. Guest work and breweries, breweries uh, uh, were especially breweries busy. were especially busy through the cold months, so they needed more workers to meet their peak demand. Book vendors and printers catering to Christmas demand
to needed extra hands before December. At Okay, the but waterfront, रुको बेटा, रुको सचिन. Anything in the first paragraph to be explained? They are simply telling you कि विक्टोरियन ब्रिटेन का मतलब हुआ जब क्वीन विक्टोरिया आई, वो वाला एरा. तो क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे जो ब्रिटेन था, वहां पे ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी. जो पुअर पीजेंट्स थे और वेग्रेंट्स मतलब वो लोग जो एक खाना बदोश की जिंदगी जीते थे, जो कि नोमैड्स की जिंदगी जीते थे, मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ जॉब. ठीक है, तो कह रहा है वो उन लोगों का जो नंबर था, उन लोगों की जो क्वांटिटी दैट थी, वो दैट वाज क्वाइट लार्ज. ठीक है, तो कह रहा है क्योंकि जब कह रहा है, और ये हम सबको पता है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है ना. आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, yes ma'am, डिमांड और क्या बोलते हैं उसको, डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ पढ़ा होगा आपने, कि जब डिमांड किसी चीज की जब कमी होती है, जब किसी चीज की कमी होती है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है, पर सामान कम होता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है. और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो, जब डिमांड कम होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उसका प्राइस जो है गिर जाता है. हमने पढ़ा है ना ये. yes ma'am, ठीक है, तो वो कह रहा है कि Yes, ma'am. बहुत सिंपल सा फंडा था कि जो है लेबर क्योंकि बहुत ज्यादा थी, लोग माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज, तो उसकी वजह से जो लेबर्स थे वो तो काफी थे, और उसकी वजह से वेजेस जो थे बहुत कम हो गए थे. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको लगा कि भाई लेबर कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए. ठीक है, और क्योंकि लेबर एम्पल क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उनको लगा कि जो है कोई जो है बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मांगेगा. तो इसलिए कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने जो है मशीन्स को इंट्रोड्यूस नहीं करा. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो जो है ह्यूमन लेबर से जो है डू अवे विद नहीं करना चाहते थे. उनको लगता था कि भाई उनकी रिक्वायरमेंट उनको है, और खामखा क्यों अपने पैसे फंसाएं लार्ज इन्वेस्टमेंट करके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके इन बाइंग मशीन्स. आई होप दिस इज क्लियर. yes ma'am, ठीक है, और दूसरी चीज, जो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी उसमें जो लेबर की डिमांड थी वो सीजनल थी. अब सीजनल कैसे, जैसे गैस वर्क्स एंड ब्रूरीज. ब्रूरीज क्या होती है आपको पता है बेटा? जहाँ पे बियर बनती है, जहाँ पे बियर प्रोसेस होती है. ठीक है, बियर प्रोसेसिंग का भी एक सीजन होता है. सर्दियों के महीने में जो है बियर बनाई जाती थी, ताकि गर्मियों के महीने में उसको बेचा जा सके. ठीक है, तो जो ब्रूरीज का उस टाइम पे गैस वर्कर्स और जो ब्रूरीज थे वो केवल सर्दियों के महीने में काम करते थे, तो लेबर की रिक्वायरमेंट केवल उन्हीं महीनों के लिए होती थी जब तक सर्दी होती थी. ठीक है, उसके बाद क्रिसमस के टाइम पे आपने देखा होगा, हमारे अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं, तो दिवाली, दशहरा, ये आपका होली, इस समय पे जो है ये सीजनल काम होते हैं. इनमें क्या होता है, उसी समय उसी पर्टिकुलर जो है त्योहार के लिए या समय के लिए जो है लोग काम करते हैं. आपने देखा होगा दिवाली आने से 2 महीना पहले लोग जो है केवल और केवल दिए, कैंडल्स और मतलब सुंदर सुंदर डिजाइनर कैंडल्स बना रहे हैं, डिजाइनर दिए बना रहे हैं, सब कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कि दिवाली पे वो सेल आउट कर सके. ठीक है, तो उन 2 महीने के लिए yes बहुत ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, जब दिवाली खत्म तो उनकी रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गई. ठीक है, अब उनको उनकी जरूरत नहीं है. तो इन चीजों के लिए मशीन्स लगा के उन्हें लगा कि हम इतना बड़ा ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे अच्छा तो हम लेबर से ही काम करवा लेंगे. हमें कम से कम सिर्फ 2 या 3 महीने तो उनको पैसे देने पड़ेंगे. मशीन अगर हमने लगा ली तो हमें साल भर उसकी वेयर एंड टेयर इनको ऊपर देखना पड़ेगा. ठीक है, उसकी कोई भी जो है टूट फूट होगी उसको देखना पड़ेगा, उसको जो है संभाल के रखना पड़ेगा, उसमें जंग ना आए, उसको रेगुलर काम करवाते रहना पड़ेगा. ठीक, तो इसलिए जो है उन्हें लगा कि भाई इससे अच्छा तो वो जो है इंसानों से ही काम करवा ले, क्योंकि सीजनली तो काम है केवल. अब जैसे क्रिसमस का टाइम होता था, उसमें बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, केटरर्स, इन सब की डिमांड जो है ज्यादा रहती थी. पर कब तक? केवल दिसंबर के महीने में, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद क्रिसमस खत्म और ये सब चीजें भी, इनकी डिमांड भी खत्म. आई होप इट इज क्लियर. yes Yes, ma'am, ma'am. देन At the waterfront, winter was the time that ships were repaired and spruced up. अब विंटर का समय ऐसा होता था, आपने क्लास 7th में अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे जो है क्योंकि सर्दियों में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, तो जो शिप का जो मूवमेंट होता है वो भी कम हो जाता है. तो जितनी भी शिप की रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है वो विंटर सीजन में होता था. ठीक है, बाकी पूरे सीजन में जो है लोग शिप्स में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं. बट इस विंटर के समय में जब वो रुक जाती थी, हॉल्ट हो जाती थी, तो जितनी भी आपकी शिप्स होती थी उनके रिपेयरिंग के काम और उनके अंदर जो भी उसका रख रखाव या मेंटेनेंस होता था वो देखा जाता था. ठीक है, yes Yes, ma'am, ma'am.
अब वो कह रहा है कि इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन, कह रहा है वो सारी इंडस्ट्रीज, वो सारे उद्योग जिनमें की प्रोडक्शन जो है सीजन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता था, वहां पे इंडस्ट्रीज जो थे वो प्रेफर करते थे कि हैंड लेबर ही यूज करें इंस्टेड ऑफ बाइंग मशीन्स। ठीक है, जिससे कि केवल वो 2 महीने 3 महीने के लिए उनको एम्प्लॉय करें और बाकी सीजन में जो है वो अपना प्रॉफिट अपने पास रखें, अपने पैसे अपने पास वो रखें। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए, then a range of products could be produced only with hand labor. Machines were oriented to producing uniforms, standardized goods for a mass market. अब कह रहा है जो मशीन्स थी वो केवल कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए ही जो है यूज में आती थी, कि भाई यूनिफॉर्म बनानी है तो एक लार्ज स्केल पे बनानी है, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसके अंदर, तो उन चीजों के लिए मशीन को यूज किया जाता था। या फिर मास मार्केट के लिए अगर कोई चीज एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनानी है तो उसके लिए मशीन्स का इस्तेमाल होता था। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब वो कहता है बट द डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विद इंट्रिकेट डिजाइंस इन स्पेसिफिक शेप्स। इंट्रिकेट डिजाइन का मतलब होता है बहुत महीन काम जो करा जाता है ना। आपने देखा होगा कि फर्नीचर इंडस्ट्री जो है, अगर बरेली की आप बात करो तो बरेली में जो फर्नीचर इंडस्ट्री है, आपने उसमें देखा होगा बहुत महीन काम किया जाता है। कुछ लोग जो है उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, वुड वर्क जो होता है ना, वुड वर्क में बहुत ज्यादा महीन काम किया जाता है, जिसमें कि स्पेशल टूल्स आते हैं, उससे डिजाइनिंग करी जाती है, हैंड वर्क होता है वो मशीन्स नहीं कर पाती है। ठीक है, Yes, ma'am. उस टाइम पे जो हमारा मार्केट था, Yes. और कुछ मशीन्स ऐसी थी जो कि बहुत ही महीन जो डिजाइन थे वो मशीन से भी बना लेती थी। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए का डिमांड बहुत ज्यादा थी जिसमें बहुत महीन काम किया जाता था, क्योंकि वो यूनिक और स्पेशल दिखता था। ठीक है, उसकी वजह से इन चीजों की डिमांड ज्यादा थी और उन्हीं के लिए केवल मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता था। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर एग्जाम्पल 500 वेराइटीज ऑफ hammers were produced and 45 kinds of axes. These required human skill, not mechanical technology. कह रहा है कि भाई हैमर को बनाने के लिए, और जो एक्स क्या होती है, कुल्हाड़ी। ठीक है, Yes, हैमर और ma'am. कुल्हाड़ी में अंतर पता है ना, हथौड़ी और कुल्हाड़ी। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. हैमर हम यूज करते हैं किसी चीज को ठोकने के लिए और कुल्हाड़ी हम यूज करते हैं लकड़ी को काटने के लिए। ठीक है, ठीक। Yes, ma'am. तो उन्होंने कहा कि भाई इन चीजों के लिए मशीन तो कोई टेक्नोलॉजी, मशीन की कोई टेक्नोलॉजी ऐसा काम नहीं कर पाएगी, उसमें तो हैंड लेबर ही रिक्वायर्ड था। तो कह रहा है ऐसे कामों के लिए ऑब्वियसली हैंड लेबर को ही प्रेफर किया जाता था। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now coming to the next paragraph. In Victorian Britain, the upper classes, the aristocrats, अच्छा चलो let someone else read. चलो ये हम पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद दूसरा पढ़ ले रहे हैं. The aristocrats and the bourgeois preferred things produced by hand. अब कह रहा है जो विक्टोरियन ब्रिटेन था उसमें जो अपर क्लासेस थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, और जो मिडिल क्लास वाले थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो थी, कह रहा है वो हाथ से बने हुए गुड्स को प्रेफर करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई मशीन मेड गुड्स तो हर कोई ले लेगा, क्योंकि सस्ता होता था, वो बहुत महंगा नहीं होता था, बल्क में बनाया जाता था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता था और एक ही तरीके का डिजाइन होता था, तो ये लोग जो है प्रेफर करते थे कि कुछ अलग से लिया जाए, मार्केट में जो मिल रहा है वो ना लिया जाए, ताकि उनकी यूनिकनेस, उनकी जो एक आइडेंटिटी है कुछ अलग से पहन के निकलने की या कुछ अलग से दिखने की, वो पूरी होती रहे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, देन हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट इन क्लास। कह रहा है कि भाई जो हाथ से काम करवाना होता था वो थोड़ा कॉस्टली होता था। ठीक है, भाई हर कोई तो आर्टिस्ट नहीं होता है ना। अगर आपको कोई महीन काम करवाना है, जैसे एम्ब्रॉयडरी ले लो आप, आपने देखा होगा एम्ब्रॉयडरी के बहुत सारे चीजें, एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी भी होती है, हैंड एम्ब्रॉयडरी भी होती है। हैंड एम्ब्रॉयडरी में डिजाइन में वेरिएशन होता है, वेरेज मशीन के एम्ब्रॉयडरी में डिजाइन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, एक सिंपल सा एक तरीके से करी जाती है, और आप आराम से मेकआउट कर सकते हो कि भाई ये हैंड एम्ब्रॉयडरी और ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है। राइट, तो ये लोग प्रेफर करते थे किसको, हैंड वर्क को ज्यादा, हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते थे वो, क्योंकि उनको लगता था कि वो उनकी क्लास बताती है, उनको डिस्टिंक्ट करती है फ्रॉम दी अदर पीपल। ठीक है, Yes, ma'am. और फिर सबसे बड़ी चीज इसकी क्या थी कि जो मशीन मेड गुड्स होते थे उसके अंदर एक डिजाइन जो बना उसको रिपीटेशन नहीं होती थी, बहुत ध्यान से बनाया जाता था,
और उसकी जो फिनिशिंग है उस पर भी ध्यान दिया जाता था, प्लस बहुत ज्यादा बल्क में एक चीज जैसी चीज नहीं बनाई जाती थी, तो इसलिए वो यूनिक और डिफरेंट सी थोड़ी सी होती थी। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then machine made goods were for export to the कॉलोनीज। मशीन मेड, जैसे इंडिया में ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा थी, यहाँ पे पोवर्टी की वजह से पीपल वर नॉट इन अ कंडीशन टू अफोर्ड खादी, कॉटन यूज नहीं कर पाते थे, तो जो है वहाँ का जो टेक्सटाइल था वो सारा का सारा उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन जो था वो ये यूरोपियन पावर जो थी ये अपने कॉलोनीज में जाके बेचती थी, जिससे कि उनको खूब अच्छे दाम मिले, और रॉ मटेरियल भी वो वहीं से लेती थी, सस्ते में रॉ मटेरियल लेती थी और महंगे में अपने फिनिश्ड गुड्स को वहां पर बेचती थी। ठीक है, राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, ओके, नाउ कैन वी हैव भूमिका रीडिंग? Yes, ma'am. पढ़ो बेटा। In Victorian Britain, the upper classes, the aristocrats, and the bourgeois preferred ये नहीं things बेटा, नेक्स्ट produced by हमने पढ़ लिया hand. बेटा, ये हमने पढ़ दिया, अगला वाला पढ़ो। In countries with labor shortage, industrialization were keen on using mechanical power so that the power for human labor can be minimized. This was the case in 19th century America. Britain, however, had no problem hiring human hands. हायरिंग ह्यूमन हैंड्स कह रहा है, इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, कह रहा है वो देश, वो कंट्रीज जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज थी, वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो मैकेनिकल पावर को यूज कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो ह्यूमन लेबर थी वो कम थी, ठीक है, और उसकी यूज को मिनिमाइज करने के लिए भी उन्होंने ये करा। कह रहा है पर जो 19th सेंचुरी अमेरिका था उसमें ऐसा था, वहां पे जो है मशीन्स को यूज किया गया क्योंकि वहां पे ह्यूमन पावर लेबर नहीं थी। वेरेज जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी और उनको ह्यूमन हैंड्स को हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Fine. Now coming to the life of the workers. The abundance of labor in the market affected the lives of workers. As news of possible jobs traveled to the countryside, hundreds trammed to the cities. The actual possibility of getting a job depended on existing networks of friendship and kin relations. If you had a relative or a friend in a factory, you were more likely to get a job quickly, but not everyone had social connections. Many job seekers had to wait weeks, spending nights under bridges or in the night shelters. Some stayed in the night refuges that were set up by the private individuals. Others went to the casual wards maintained by the poor law authorities. ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या समझ में आया, कोई हमें बताएगा? कुछ समझ में आया इस पैराग्राफ में बेटा आपको क्लास? यस, माही, निहारिका, सचिन, भूमिका, Yes, ma'am. क्या समझ में आया बेटा? Ma'am, job depends on networks of friendship and kin relations. इन रिलेशनशिप क्या होती है? जो आपके सगे संबंधी भाई बंधु हैं, ठीक है, Ma'am, Yes, release. ma'am. हाँ, ब्लड रिलेशंस कह लो या क्लोज रिलेशंस कह लो, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्या समझ में आया? चलिए ठीक है। Many jobs had to be wait, and many people have to wait for their jobs. हाँ, देखो ऐसा है, वो कह रहा है कि जो वर्कर्स की जो लाइफ थी वो बड़ी ही अनसर्टेन टाइप थी। उसका कारण ये था कि भाई लेबर जो है, मार्केट ने अफेक्ट तो करा ही था लेबर को, वर्कर्स की लाइफ को। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है कंट्री साइड से ट्रेवल करने लगे, कहाँ पर? सिटीज में। ट्रैम्ड टू दी सिटीज मतलब धीरे धीरे सिटीज की तरफ बढ़ने लगे। पर कह रहा है कि
नौकरी मिलने की जो पॉसिबिलिटी थी वो तभी होती थी कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। नेटवर्क स्ट्रांग का मतलब आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल्स जो आजकल चल रहे हैं, जिन लोगों के बहुत जानने वाले हैं, दोस्त लोग हैं, वो तो उनके चैनल्स को प्रमोट कर देते हैं, पर जिनका कोई नहीं है उनके चैनल्स क्या होते हैं, उनको किसी ना किसी सोर्स से अपने चैनल को प्रमोट करवाना पड़ता है और उसमें टाइम लग जाता है। पर जिनके बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत दोस्ती यारी है, या जिनके बहुत बड़ी फैमिली सर्कल है, तो उसमें तो उनको मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे से कह के जो है वो अपने चैनल को जो है पॉपुलराइज करवा लेते हैं। ऐसे ही तो होता है, यही तो है नेटवर्किंग, इजंट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो जॉब जो थी उस टाइम पे, जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज थी या जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटीज थी, वो इस बात पे बहुत डिपेंड करती थी कि कोई आपका दोस्त उस पर्टिकुलर फील्ड में है, या आपके कोई सगे संबंधी उस पर्टिकुलर फील्ड में है। क्योंकि अगर वो हैं तो पॉसिबिलिटी थी कि भाई ठीक है, जान पहचान की वजह से आपको जॉब मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, और इसका नतीजा ये तो होता था, Yes, ma'am. अगर किसी का कोई जान पहचान वाला नहीं होता था तो बहुत सारे लोगों को जो है कई कई दिन तक जो है ब्रिजेस के नीचे सो के, फुटपाथों पे सो के, या नाइट शेल्टर्स में जाके, या फिर नाइट रेफ्यूजीज जो होते हैं ना, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स डालते हैं कि भाई चलो ठीक है, कोई आया है दूसरे शहर से आया है, तो वो कहाँ रात बिताएगा या कहाँ सोएगा, तो चलो उसको जो है उसके लिए शेल्टर बना दो। ठीक है, ठीक, Yes, ma'am. ठीक है। अब कह रहा है, Yes, ma'am. हाँ फिर कह रहा है चलो, कैन वी हैव निहारिका रीडिंग? निहारिका क्या चली गई है अभी मीटिंग से? Yes, ma'am. बेटा पढ़ो बच्चे। सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्रीज, पढ़ो। Yes. पढ़ो बच्चे। Seasonality of work in many industries meant prolonged periods without बेटा prolonged periods without work. work. After the busy season was over, the poor were on the streets again. Some returned to the countryside after the winter, when the demand for labor in the rural areas opened up in places, but most looked for odd jobs, which till the mid 19th century were difficult to find. वो कह रहा है बेटा, इस पैराग्राफ में वो आपको ये समझा रहा है कि जो सीजनल वर्क हुआ करता था, या जो सीजनल इंडस्ट्रीज होती थी, वहां पे बहुत लंबे समय तक इंसान लेबर जो था वो बिना काम के रहता था। तो कह रहा है कि जब बिजी सीजन खत्म हो जाता था तो बेचारे जो ये जो लेबर्स थे, इनको जो है दोबारा से गलियों में निकलना पड़ता था, स्ट्रीट्स में निकलना पड़ता था, ताकि जो है ये छोटे मोटे काम कर सकें और अपनी लाइवलीहुड चला सके। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. कह रहा है Yes, कि ma'am. बोले कुछ लोग जो है अपने कंट्री साइड वापस चले जाते थे, क्योंकि उनकी डिमांड वहां पे रूरल एरियाज में खुली रहती थी। और कह रहा है कुछ लोग क्या करते थे, वो कुछ भी जॉब जो है ढूंढते रहते थे। और ये जो सिनेरियो था ये आपका मिड 19th सेंचुरी तक काफी कॉमन था, जहाँ पे लोग जो थे आपको नौकरी ढूंढते हुए मिल जाते थे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आप हमें ये अब हम कल इसकी यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 मिनट से भी कम समय बचा है। आई होप आज जो हमने पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया। Yes, ma'am. ठीक है, दूसरा Yes, ma'am. बेटा क्योंकि अब आप लोगों के लिए एग्जाम थोड़ा सा और टिपिकल हो जाएगा, अगर एमसीक्यू बेस्ड आएगा केवल अगर आपका फर्स्ट टर्म, तो उसके लिए आपको बहुत माइन्यूट डिटेलिंग पढ़नी पड़ेगी। आपको लाइन टू लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि किसी एक लाइन से उन्होंने कोई क्वेश्चन बना दिया, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया और आप लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. कोई ऐसी चीज जो आप लोग को ना समझ में आई हो बेटा? No, ma'am. पक्का समझ में आ गया सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है,